Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Amjad Taki and our today's lecture of comparative public administration is about civil services, a comparative approach. In this lecture we will talk about what constitutes a civil service, who are civil servants, features of civil service, sources of civil service in United States of America, United Kingdom, France. USSR stands for Union of Soviet Socialist Republic, currently known as Russia, and Pakistan. Civil servants and executive relationships, political rights of civil servants. What constitutes a civil service? Traditionally, in political science subject, there has been no distinction between policy making and implementation. Generally, if we talk about this, policy making or legislation is different as compared to implementation or execution. The two major functions assigned to the government are rule making and rule execution. I have already talked about this. Rule making, this is called legislation which is done by the parliament of a state, and the second is rule execution or implementation, which is done by the institutes or organization of that state. It is also unusual to distinguish between different roles of the political executives and the professional administration. The political executives are amateur administrators and the professional administrators are civil servants. There are two types of administrators. Number one, political administrators, and the number second is professional administrators. Political administrators are amateur or non-professional or traditional, while the professional administrators or civil servants are professional. Further, in democratic countries, the political executive is answerable to the parliament directly and the civil servants through several hierarchies as indirectly answerable to their political executives. The political executives are not permanent elements of the government, while the civil servants are. Political executives or politicians are non-permanent. They are empowering or enjoying the power of the state for a specific time period. If we talk about Pakistan, this period is continues for 5 years, and in America it continues, or government tenure is 4 years. However, the political executives or politicians enjoys the powers of the state for specific time period, but the civil administrators or professional administrators, civil servants, they are the permanent elements of the government. It is impossible to see top civil servants without any degree of policy initiative, especially given the increasing complexity and scope of the policy making process in modern welfare states. They are highly professional and intellectuals to their professions. If we talk about
budget making process. In this process, highly professionals in finance and economics take part. Thus, in short, we can define the term civil service to these members of the executive staffs of ministerial departments who occupy responsible position in relation to the formulation and execution of the government policies. The civil service system provides a degree of continuity from government to government. No doubt, in most of the countries, the civil service positions are regarded as political, where the occupants will change as government change, but it varies in degree in different countries. In Pakistan, the United Kingdom, the United States of America, it is less. In France, it is moderate, and in the Soviet Union, it was the extreme case wherein the civil service was highly political. बहुत से कंट्रीज़ में ये कॉन्सेप्ट है कि सिविल सर्विस पोजीशंस सियासी या पॉलिटिकल है, जिसमें गवर्नमेंट के आने या जाने से इनकी पोजीशन चेंज होती है, लेकिन ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। अगर हम बात करें अमेरिका, यूके और पाकिस्तान की, तो अमेरिका, यूके और पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम है। और अगर हम बात करते हैं इसमें सोवियत यूनियन की, तो सोवियत यूनियन में इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो कॉमन थी। और फ्रांस में जो है वो इसमें एवरेज थी, यानी कि 50-50 थी, कि ऐसा था भी और ऐसा नहीं भी था। Next is, who is civil servant? A civil servant or public servant is a person in public sector employed for a government or agency. वो शख्स जो किसी पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या गवर्नमेंट की किसी ख़ास एजेंसी का एम्प्लॉई है, उसको सिविल सर्वेंट बोलते हैं। इसी तरह सिविल सर्वेंट्स को डिफ़ाइन करने की एक और इसमें डिफ़ाइन किया गया है, अ पर्सन हु असिस्ट द गवर्नमेंट इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ वेरियस एग्जेक्टिव फंक्शंस, कि मुख्तलिफ एग्जेक्टिव फंक्शंस जो एक गवर्नमेंट के हैं डेली बेसिस के, डे टू डे अफेयर्स ऑफ वेरियस एग्जेक्टिव फंक्शंस, उसको जो परफॉर्म करता है जो शख्स, उसको सिविल सर्वेंट बोलते हैं। According to Pakistan Civil Servants Act 1973, a civil servant is a person who is a member of an all Pakistan service or of a civil service of the Federation, or who holds a civil position in connection with the affairs of the Federation, including any such post connected with the defense, but it does not include कि पाकिस्तान सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के मुताबिक हर वो शख्स सिविल सर्वेंट है जो गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के या फेडरेशन के मामलात जो ऑफिशियल वर्क है उसको अंजाम देने में अपनी कैपेसिटी में वो वर्क करता है, चाहे वो डिफेंस से ही रिलेटेड क्यों ना हो। लेकिन इसमें कौन लोग सिविल सर्वेंट्स काउंट नहीं होंगे, ये इसमें देखें। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973, अ पर्सन हु इज़ ऑन डेपुटेशन टू द फेडरेशन, ये वो शख्स जो किसी अपना उसका पेरेंट डिपार्टमेंट कुछ कोई और है, वो फेडरेशन में डेपुटेशन पर आया है, फेडरल इंस्टीट्यूट किसी फेडरल इदारे में डेपुटेशन पे आया है, तो वो सिविल सर्वेंट उसको नहीं बोला जाएगा। सेकंड पर, अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट और ऑन वर्क चार्ज बेसिस, ये वो शख्स जो कॉन्ट्रैक्ट पर हो, खा उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड होता जाए, लेकिन उसकी जो बेसिक जो है रिक्रूटमेंट वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो वो शख्स भी सिविल सर्वेंट नहीं कहलाएगा। इसके अलावा इसमें है कि ऑन वर्क चार्ज बेसिस, इसमें डेली बेसिस, आवरली बेसिस
जिनको वेजेस पे की जाती हैं, वो एम्प्लॉइज़ जो है वो लोग भी सिविल सर्वेंट्स नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ सिविल सर्विसेज। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिविल सर्विसेज? Generally, civil services are regarded as political neutral. It's a plain statement कि civil services जो हैं वो politically गैर सियासी होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। सिविल सर्वेंट जो है वो गैर सियासी या न्यूट्रल होते हैं, यानी कि वो पॉलिटिक्स वगैरह में हिस्सा नहीं ले सकते। The second, the basic function of the civil service in all modern states is to assist the political executive to conduct the affairs of the government. तमाम मॉडर्न स्टेट्स में सिविल सर्विसेज का जो बेसिक फंक्शन है, वहाँ के पॉलिटिकल सेटअप या पॉलिटिकल सिस्टम को, स्टेट के अफेयर्स को रन करने के लिए मदद फराहम करना है। नेक्स्ट, अ जनरल कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्मनी एग्जिस्ट इन द वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस है, काम करने की जगह है, ऑफिस है या फील्ड है, वर्क प्लेस पर डिसिप्लिन एंड रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है और हम आहंगी या मुताबिकत या म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ इधर काम किया जाता है। नेक्स्ट, परमानेंसी ऑफ द पोस्ट हेल्ड बाय द सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स की जो पोस्ट है वो परमानेंट है, जबकि अगर बात की जाए इसमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स की, जो सियासतदान या मिनिस्टर्स वगैरह जो आते हैं हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उनकी जो पोस्ट है वो टेम्परेरी है। वो अगर वो अपना पीरियड कंप्लीट करते हैं, अगर वो गवर्नमेंट जो है अपना पीरियड कंप्लीट करती है, तो अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो उसका मैक्सिमम पीरियड क्या है, 5 ईयर है। अमेरिका में बात की जाए तो उसका मैक्सिमम पीरियड 4 ईयर है। कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी होते हैं, जबकि सिविल सर्वेंट जो हैं वो परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट, द वर्क ऑफ द सिविल गवर्नमेंट इज़ मोस्टली गवर्न्ड बाय रिटन प्रोसीजर्स एंड रूल्स। आई हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द रूल एंड रेगुलेशन कि गवर्नमेंट के जो भी मामलात हैं, इसके अफेयर्स हैं, वो रूल्स और रेगुलेशंस के तहत ही चलाए जाते हैं। जिस तरह हमने डेफिनेशन इसकी देखी है सिविल सर्वेंट्स की, तो यहाँ पर इसने बात की है सिविल सर्वेंट्स की डेफिनेशन में, पाकिस्तान सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 कि उसकी डेफिनेशन और उसका जो वर्क है कि किस तरह ये सिविल सर्वेंट्स वर्क करेंगे, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरह इनकी रिक्रूटमेंट होगी, कौन सी पर्सनैलिटीज़ अथॉरिटीज़ को सिविल सर्वेंट कहा जा सकता है और किन को सिविल सर्वेंट्स नहीं कहा जा सकता, इनका प्रमोशन का जो स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा, किन बेसिस पर इनकी जो सर्विसेज हैं उनको सस्पेंड या डिसमिस किया जा सकता है, ये सब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। दे आर ट्रेंड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड टास्क सेट बाय द गवर्नमेंट। सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो स्पेशल इनको टास्क अटेन करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए इनको स्पेशली ट्रेंड किया जाता है। स्पेशली ट्रेंड किस तरह किया जाता है? थ्रू प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस। इन इंस्टीट्यूशंस में नीपा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विस एकेडमी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज, सीनियर मैनेजमेंट विंग, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी,
नेशनल पुलिस एकेडमी, ये तमाम वो इंस्टीट्यूशंस, वो इदारे हैं जहाँ से सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाता है उनकी अपनी फील्ड्स में। इनके अगर कोई पुलिस सर्विस का एम्प्लॉय है तो उसे नेशनल पुलिस एकेडमी से ट्रेन किया जाएगा, या नीपा से भी पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, पीएसपी ऑफिसर्स हैं, वो नीपा से भी ट्रेनिंग वगैरह हासिल करते हैं। नीपा क्या है? नीपा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ वर्थ mentioning that NIPA trains senior government officials in public administration, and this training is required for senior bureaucrats in Pakistan। कि नीपा के बगैर, नीपा कोर्स के बगैर कोई भी सीनियर ब्यूरोक्रेट है उसको नेक्स्ट बीपीएस या नेक्स्ट स्टेप पर प्रमोट नहीं किया जाता जब तक ये ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स नीपा कोर्स नहीं करते। नेक्स्ट, दे enjoy certain privileges compared to the ordinary citizens। सिविल सर्वेंट जो है उनको आम शहरी की निस्बत इनके जो मुराआत हैं वो ज़्यादा हैं, जिसमें इनके लिए ऑफिशियल रेजिडेंस, जिसको अकोमोडेशन भी बोलते हैं, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जिसमें इनके लिए जो मुलाजमीन घर के काम शाम के लिए मुलाजमीन होते हैं, ये रैंक वाइज इनका जो स्टाफ है, पर्सनल स्टाफ जिसको बोलते हैं, ये एक्सीड करता जाता है। तो सिविल सर्वेंट्स हैं, दे एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी सिटीजन्स। नेक्स्ट, दे आर होल्डर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बट सबसर्विएंट टू देयर पॉलिटिकल मास्टर्स। इसमें सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को एंजॉय करते हैं, बट वो जवाबदेह होते हैं किनको? पॉलिटिकल मास्टर्स को। अगर किसी डिपार्टमेंट की हम बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो सेक्रेटरी होगा वो सिविल सर्वेंट होगा, जो पूरे डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को रन करता है। लेकिन वो जवाबदेह किसको है? पॉलिटिकल मास्टर उसका कौन होगा? जो फॉरेन मिनिस्टर होगा। फॉरेन मिनिस्टर इसका पॉलिटिकल मास्टर होगा। हम इससे पहले भी रीड कर चुके हैं कि जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो जवाबदेह हैं पार्लियामेंट को। इसी तरह जो सेक्रेटरीज़ हैं, किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज़ हैं या ओवरऑल जो हेड हैं, वो जवाबदेह हैं, दे आर आंसरेबल टू पॉलिटिकल मास्टर्स। अगर हम बात करें, इसी की बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, इसका मिनिस्ट्री का जो हेड है, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वो जवाबदेह है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर को, और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर पार्लियामेंट को जवाबदेह है। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल, दे आर होल्डर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बट subservient to their political masters। And the last one is civil servants are usually referred to those persons who are occupying the top administrative post rather than the subordinate or clerical level employees। कि सिविल सर्वेंट्स वो पर्सनस हैं, वो लोग हैं, वो एम्प्लॉइज़ हैं गवर्नमेंट के जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर होते हैं, ना कि क्लरिकल या मिनिस्ट्रियल स्टाफ लेवल के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सिविल सर्वेंट्स कहलाएंगे। टॉप लेवल के जो बॉसेस हैं, टॉप लेवल की जो मैनेजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको सिविल सर्वेंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट, सिविल सर्विसेज आ कंपैरेटिव अप्रोच। हियर वी टॉक अबाउट फ्रांस एंड द सिविल सर्विस ऑफ France। École Nationale Administration, France, 1945। École, it is in French, École Nationale Administration। If we translate into English,
This is called National School of Administration. National School of Administration or École Nationale Administration was created in 1945 by French President Charles de Gaulle and principal author of the French Constitution, Michael Deber. In France, college professors and school teachers are included in the civil servant list. सिविल सर्वेंट्स में हर कंट्री का जो है वो एक कंट्री दूसरी कंट्री से वेरी करती है कि वो इसमें कौन कौन से एम्प्लॉइज़ जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स कहलाएंगे। अगर हम बात करें फ़्रांस की, तो फ़्रांस में जो कॉलेज के प्रोफेसर्स और स्कूल टीचर्स हैं वो भी सिविल सर्वेंट्स की लिस्ट में शामिल हैं। द फ्रेंच सिविल सर्विस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्प्स categories of staff which form the groups into which recruitment occurs. Members of the Grand Corps, senior administrators are recruited from the graduates of specialist competitive entry training schools founded by the state. फ्रेंच का जो सिविल सर्विस सिस्टम है वो बेस करता है कॉर्प्स पर। कॉर्प्स उर्दू में दस्ते को, फौजी दस्ता या किसी ग्रुप को बोलते हैं। फ्रेंच में जो सिस्टम है सिविल सर्विस सिस्टम है वो इसी पर बेस करता है कि जो इसके सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो न्यूली अपॉइंटमेंट या रिक्रूटमेंट वगैरह वो करते हैं। इट हैज़ बीन क्लेम्ड दैट अमंग ऑल द कंट्रीज सिविल सर्विस सिस्टम द वन विच इज़ प्रैक्टिस्ड इन फ्रांस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट। कि दुनिया में जहाँ कहीं भी ये सिविल सर्विस सिस्टम चल रहा है, जिस मुल्क का भी है, उनमें सबसे जो बेहतरीन सिस्टम है फ्रांस को कहा जाता है। इसमें एक वजह ये भी है कि उसमें कॉलेज प्रोफेसर और स्कूल टीचर्स भी शामिल हैं, क्योंकि वो एक कॉलेज का प्रोफेसर या स्कूल टीचर जो अपनी फील्ड में इंटेलेक्चुअल है, प्रोफेशनल है, जो डायरेक्शंस या इंफॉर्मेशन वो दे सकते हैं, वो एक पॉलिटिकल मिनिस्टर जो है वो नहीं दे सकता। क्योंकि पॉलिटिकल मिनिस्टर्स के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि उसकी वो प्रोफेशनल क्वालिफाइड हो। तो यही वजह है कि आई थिंक, मेरा ख्याल है कि इसमें यही वजह है कि जो फ्रांस का जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम है, एक तो ये कोर्स पर बेस करता है, दूसरा इसमें स्कूल और कॉलेज के टीचर प्रोफेसर शामिल हैं। इस वजह से ये बाकियों की निस्बत इफ़ेक्टिव है। Next, in the 19th century, conditions of service in some corps were highly regulated. As far as specific codes for civil servants are concerned, it is left to the individual ministries, and the general code even today is prescribed by the council. फ्रांस में 19th सेंचुरी में कुछ कॉर्प्स की सर्विसेज को हाईली रेगुलेट किया गया, जबकि कुछ सिविल सर्वेंट्स को इनके पेरेंट मिनिस्ट्रीज़ के मातहत रहने दिया या उन पर फैसले का इख्तियार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दे दिया गया। कोई भी कंट्री है वो अपने इदारों की, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस को जो उनकी परफॉर्मेंस है उनको बढ़ाने के लिए, उनको इन्हेंस करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए मुख्तलिफ रिफॉर्म्स वगैरह लेकर आता है। इसी तरह फ्रांस में हुआ कि फ्रांस में 19th सेंचुरी में कॉर्प्स की सर्विसेज को हाईली रेगुलेट किया गया, जबकि कुछ सिविल सर्वेंट्स को इनके पेरेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इनके मातहत रहने दिया या उनके फैसले का इख्तियार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दे दिया गया। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी factors were the major causes of initiating civil service reforms. Codification of laws for civil service took place during the Vichy government in 1941. जो रिफॉर्म्स का जो एक मकसद, ये रिफॉर्म्स क्यों की जाती हैं, एक तो इसमें सबसे मेजर जो इसका इशू है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है
कि एक तो कोई भी गवर्नमेंट है वहाँ पर टेन्योर है किसी भी कंट्री में, और एशिया में जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनमें गवर्नमेंट का टेन्योर 5 ईयर है। अगर हम जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जिन ममालिक में, अमेरिका वगैरह की बात करें, वहाँ पर जो गवर्नमेंट का टेन्योर है वो 4 ईयर्स है। तो इसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। अगर पाकिस्तान या एशिया में देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान की स्पेसिफ़िकली बात करें तो गवर्नमेंट को जो अपना ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो मुकम्मल नहीं करने दिया जाता। उसमें काफ़ी रीज़न्स आ जाती हैं। सबसे बड़ी रीज़न एक इसमें अपोजिशन पार्टी होती है। इसकी वजह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और हर जो नई गवर्नमेंट आती है उसने अपने कोई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसकी वजह से इनमें चेंजेस वगैरह है वो लाजमी हो जाती हैं। अ जनरल चार्टर ऑफ सिविल सर्विस वाज ड्राफ्टेड इन द ईयर 1946। यहाँ पे फ्रांस की बात कर रहे हैं कि फ्रांस का जो जनरल चार्टर ऑफ सिविल सर्विस वाज ड्राफ्टेड इन द ईयर 1946 में जनरल चार्टर जो है वो ड्राफ्ट किया गया। द प्रेजेंट सिविल सर्विस सिस्टम इन फ्रांस इज़ मेनली गवर्नड बाय द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज प्रोमलगेटेड इन द ईयर 1959। जो मौजूदा फ्रांस का सिविल सर्विस सिस्टम है वो 1959 वाला जो उसमें लागू हुआ फ्रांस में, उसी को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन इसमें अगर देखें तो 1946 की जो कोडिफिकेशन थी उसमें रेगुलेशंस वगैरह थी, रूल्स थे, वो सारे 1946 वाले में मैक्सिमम जो है 1946 वाले जो रूल्स वगैरह थे या कोडिफिकेशंस थी, लाज थे, वो सब 1959 में जो रिफॉर्म्स हुई हैं उसमें शामिल की गई। कुछ चंद एक होंगी जिसमें वो न्यू जो रिफॉर्म्स हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। तो अगर किसी को कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ वो शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस, तो वो मुझे व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली या ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।